Good morning, everybody. Today we are going to discuss about the 10th poem of a book titled Fragrances. The title of the poem is The Bengal Salars. This poem is for the students of third semester, BA third semester. This poem has been written by Sarojini Naidu. In this poem, सरोजनी नायडू इज़ टॉकिंग अबाउट द बेंगल सैलर्स. वो बेंगल सैलर्स के बारे में बात कर रही हैं. एंड वन ऑफ देम मीन्स वन ऑफ द बेंगल सैलर्स इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम. जो भी हमें बेंगल सैलर्स के बारे में पता चलता है या हमें बेंगल्स कितने टाइप्स की हैं उसके बारे में जो भी पता चल रहा है, शी इज़ टॉकिंग थ्रू द नरेटर. वो नरेटर के थ्रू बात कर रही हैं और नरेटर एक बेंगल सैलर ही है इस पोएम के अंदर. नाउ सरोजनी नायडू, she is also known as the Nightingale of India. She was a poet as well as a political activist. Her father, Aghoornath Chattopadhyay, he was a renowned scientist, philosopher, educator, as well as a linguist. And her mother, she was also a Bengali poet. So her background means both her parents were highly educated, so she grew up as a hardworking and talented student. She was interested in learning languages and became proficient in Urdu, Telugu, English, Bengali, and Persian language. At the age of 12, she passed the matriculation examination, and at the age of 13, she composed a narrative poem in English of about 2000 lines. Her reputation as a poet rests on 3 collections. उनकी 3 collections जो हैं बहुत famous हैं. The Golden Threshold, which got published in 1905, The Bird of Time, and Songs of Life, Death and the Spring, and The Broken Wing, which got published in 1917. Her poems have been described as fanciful creations of Indian myths and legends. Her poetry interprets the soul of India and is remarkable for its rhythmic quality. ये जो poem है The Bengal Salars, this was first published in The Bird of Time. जो Bird of Time उनकी collection है उसके अंदर ही ये जो poem है ये publish हुई. She is talking about a group of Bengal Salars, and one of whom is the narrator of the poem, is on its way to the temple fair. एक फेयर लगा है, एक मेला लगा है जिसके अंदर ये सब जो Bengal Salars हैं they are on its way on that fair. And one of them, where they were going, now the narrator is telling us, he says that they are carrying shining loads of bangles. The poem is like this: Bengal Salars are we who bear our shining loads to the temple fair. Means they are going to the temple fair. वो किसी temple fair में जा रहे हैं, एक मेला लगता है जहाँ पर वो जा रहे हैं. And they are carrying shining loads of bangles. अपने साथ वो चमकती हुई चूड़ियाँ जो हैं वो ले जा रहे हैं. Who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives? He wonders. He wonders who will buy these delicate and bright stuff. ये जो delicate सा bright stuff है इसे कौन खरीदेगा? He calls the bangles rainbow-tinted circles of light. He calls them lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. ये जो बैंगल्स वो लेकर के जा रहा है वो उसे कुछ नाम दे रहा है, जैसे रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, कि जैसे इंद्रधनुष के रंगों वाले रोशनी के घेरे. और ये जो बैंगल्स हैं ये स्पेशली किसके लिए हैं? फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स. वह उन्हें प्रसन्न बेटियों और प्रसन्न पत्नियों के लिए दमकते जीवन के शानदार प्रतीक भी कहता है.
वो कहता है कि दीज आर द सिम्बल्स ऑफ हैप्पीनेस, ये जो चूड़ियाँ हैं ये सिम्बल्स हैं हैप्पीनेस के. All he means to say is that the bangles are the tokens of love and happiness in the lives of married as well as unmarried women. ये जो चूड़ियाँ हैं वो चाहे मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, हर किसी की लाइफ में दे आर द सिम्बल्स ऑफ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का सिंबल है, ये लव को शो करती हैं, ये प्यार को शो करती हैं. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज some are meet for maiden wrist, some are meet for maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that tread on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom and cleaves to the limpid glory of newborn leaves. Now, he says that some of them it will suit to the wrist of maidens. मतलब मेडन्स का मतलब यहाँ पर है अनमैरिड गर्ल्स. वो डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी जो चूड़ियाँ हैं वो किस किस को सूट करेंगी. जैसे ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो किसे सूट करेंगी टू द रिस्ट ऑफ मेडन्स, जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं उनकी रिस्ट पर अच्छी लगेंगी. दे आर ऑफ सिल्वर एंड ब्लू कलर, उनका जो कलर है वो सिल्वर और ब्लू कलर है. लाइक द मिस्ट ऑफ माउंटेन्स, लाइक द मिस्ट ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों के छाई धुंध के समान वो कंपैरिजन कर रहा है कि वो माउंटेन्स पर जो मिस्ट है, जो धुंध है, उसके समान उसका कलर है. एंड सम आर लाइक रेड बर्ड्स, और कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो रेड बर्ड्स के समान हैं. ड्रीमिंग on the tranquil brow of a woodland stream. He means to say, a maiden wearing these bangles starts having sweet rosy dreams about her future life with her in-laws. मतलब दे जैसे ही वो पहनती हैं, जैसे ही वो पहनती हैं लड़कियां इस कुछ जो रेड बर्ड्स की तरह हैं कुछ चूड़ियाँ, जब वो इसे पहनती हैं तो दे स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट देयर लाइफ. वो अपनी लाइफ के बारे में ड्रीमिंग करना शुरू कर देती हैं, सपने संजोने शुरू कर देते हैं कि हाउ देयर लाइफ विल बी विद देयर इन लॉज, उनकी अपने इन लॉज के साथ कैसी लाइफ होगी वो उसको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं. And some of the bangles glow like newborn leaves. कुछ bangles ऐसी हैं they glow like newborn leaves. वो newborn leaves के जैसे, जैसे अभी अभी पत्ते, जैसे हरे रंग के पत्ते जो हैं नए नए खिलते हैं उनके जैसे हैं. The poet uses a beautiful metaphor to describe their beauty, the limpid glory of newborn leaves. बहुत ही जैसे नए पैदा हुए पत्तों की पारदर्शी सुंदरता जो है, वो इसने जो लाइन ये जो यूज़ की है वो बहुत ही सुंदर मेटाफर यूज़ किया है कि नए पैदा हुए पत्तों के समान जो है उनका कलर है. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज समर लाइक, यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोएम जो है वहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है. सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कोन मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मोन. सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर. टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफर एंड ब्राइडल टीयर. नाउ ही इज़ डिस्क्राइबिंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंगल्स. अब वो जो और टाइप्स की बैंगल्स हैं उन्हें वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है. जैसे ही सेज दैट सम ऑफ द बैंगल्स दे आर कैरिंग, दे लुक लाइक द फील्ड्स ऑफ सनलिट कोन. वो फील्ड्स ऑफ सनलिट कोन की तरह जो है नज़र आती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में दमकते अनाज के खेतों की तरह लगती हैं. दे विल सूट अ ब्राइड, और ऐसी बैंगल्स जो हैं वो किसको सूट करेंगी? दे विल सूट टू अ ब्राइड टू वियर ऑन द डे ऑफ देयर मैरिज. शादी के दिन जो दुल्हन है
वो उसके लिए जो है ये बैंगल्स हैं. सम ऑफ द बैंगल्स दे हैव द ग्लो ऑफ द मैरिज फायर, दे सिम्बलाइज द रिच कलर ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर. उस दिन, शादी के दिन जो है, सभी लड़कियों के मन में कुछ ना कुछ उमंगें होती हैं, कुछ ना कुछ सपने संजोए होते हैं. वो जो कलर है वो उन चूड़ियों के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है. देयर जिंगल एंड टिंकल सिम्बलाइजेज द लाफर एंड पर्ली टीयर्स ऑफ अ ब्राइड. शादी जो है वो एक ऐसा मौका है जब लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं. दे लाफ अ लॉट ऑन दैट डे एंड they also cry on that day at the time of departure. जब उनकी विदाई होती है तो वो रोती भी हैं. तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो इन चूड़ियों का लेकर के आया है बैंगल सेलर. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे, for she has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side. अब ये जो है लास्ट पैराग्राफ है पोएम का. In this paragraph, the poet is talking about the next category of the bangles. अब जो next category है bangles की, उसके बारे में discuss कर रहा है. He says that some of the bangles are grey with purple and gold flecks on them. कुछ जो bangles हैं वो ग्रे कलर की हैं, उसमें कुछ पर्पल सा मिक्स है और कुछ गोल्ड फ्लैक्स, गोल्ड जैसा भी कलर उसके ऊपर नज़र आ रहा है. अब ये जो बैंगल्स हैं, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द लास्ट कैटेगरी ऑफ द लेडीज़, कि ये जो चूड़ियाँ हैं दे विल सूट टू द मैच्योर वीमेन. ये मैच्योर वीमेन को सूट करेंगी. ये जो कैटेगरी है ये मैच्योर लेडीज़ के लिए है. हु हैव जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक क्रॉस कर चुके हैं, काफ़ी सीमा जो है वो उन्होंने तय कर चुके हैं और अभी भी ज़िंदगी जो है वो बाकी है. दे हैव फेड देयर सन्स ऑन देयर ब्रेस्ट्स एंड ब्रॉट देम अप. ये उन लेडीज़ के लिए हैं जो अपने बच्चों को जो है बड़ा कर चुकी हैं. दे हैव ब्रॉट देम अप, वो पालन पोषण जो अपने बच्चों का कर चुकी हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं. दे हैव ब्लेस्ड देम विद ऑल देयर लव, जिन्हें उन्होंने बहुत प्यार से पाला पोषा है, बड़ा किया है. दे हैव वर्कड हार्ड विद देयर हैंड्स टू मीट देयर नीड्स. उन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. एंड दे फील प्राउड दैट दे हैव सर्व्ड देयर हाउस होल्ड सक्सेसफुली. अब ये जो मैच्योर वीमेन हैं वो इस स्टेज पर आकर के अपने आप को कहीं ना कहीं प्राउड फील करती हैं कि सक्सेसफुली दे हैव कंप्लीटेड देयर जर्नी, कि वो काफ़ी हद तक अपनी जर्नी को सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर चुकी हैं. नाउ आफ्टर हैविंग परफॉर्म्ड ऑल देयर ड्यूटीज़, दे हैव अर्नड द राइट टू सिट एट द साइड ऑफ देयर हस्बैंड्स. अब सारी ड्यूटीज़ पूरी करने के बाद अब वो ऐसी स्टेज पर आ गई हैं वेयर दे विल हैव द राइट टू सिट बाय द साइड ऑफ देयर हस्बैंड एंड वर्शिप द गॉड्स, जहाँ पर अब वो अपने हस्बैंड की साइड में बैठ सकती हैं प्राउडली. एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू वर्शिप द गॉड्स. अब वो देवी देवताओं की पूजा करने का टाइम भी आ गया है. एंड दिस इज़ द टाइम टू परफॉर्म ऑल अदर रिलीजियस ड्यूटीज़. अब वो उनका टाइम आ गया है कि अपनी जो अगला जीवन है वो अपने धार्मिक कार्यों के अंदर जो है वो लगाएंगी. तो ये जो बैंगल्स हैं, जो लास्ट कैटेगरी थी, ये मैच्योर लेडीज़ के लिए है. मींस इस पोएम के अंदर जो बैंगल सेलर्स हैं उसने तीन टाइप्स की जो बैंगल्स हैं वो उनको जो है 3 स्टेजेस दिखाई हैं, 3 तरह की बैंगल्स को शो करते हुए. कि एक तो स्टेज है विर्जिन है जब वो अनमैरिड है. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज़ ब्राइड्स व्हेन दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, जब वो व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड, जब वो शादी होने वाली है. एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ मैच्योर, जो लेडीज़ जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर चुकी हैं. तो द बैंगल सेलर
just wants to convey that कि all types of bangles, ये जो सारी कैटेगरीज हैं बैंगल्स की, हर तरह की लेडी जो है वो दे लव टू वियर द बैंगल्स एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। कोई भी स्टेज हो, लेडीज़ को, वीमेन को चूड़ियाँ जो पहनना है वो बहुत पसंद होता है। तो हर कलर जो है यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, हर चीज़ जो है वो सिम्बलाइज कर रही है। द कलर्स ऑफ देयर बैंगल्स एंड द लवली फ्लैक्स ऑन देम सिम्बलाइज देयर प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन। अब जैसे लास्ट जो कैटेगरी है वो उनका जो कलर है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है उनके प्राइड को, उनके सेटिस्फैक्शन को, कि दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मैरिड लाइफ। उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और दे आर सेटिस्फाइड, कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं। और बहुत सारे इस पोएम के अंदर सरोजनी नायडू ने जो है पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की हैं, लाइक सिमिलीज़ हैं, मेटाफर्स हैं। तो दे आर एडिंग ब्यूटी टू द लैंग्वेज। डेफिनेटली लैंग्वेज जो है बहुत सुंदर हो जाती है जब सिमिलीज़ और मेटाफर्स यूज़ की जाती हैं। सिमिलीज़ अगर हम बात करें तो सिमिली जो है वो दैट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस है सिमिली। इट इज़ एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, एक्चुअली एक कंपैरिजन है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, एक्शंस और फीलिंग्स में। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। सिमिली के अंदर जो है बार बार अगर आपने देखा हो पोएम के अंदर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एज, लाइक, सो। जैसे कुछ लाइंस के अंदर सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट आपने पढ़ा, तो एज जो है वो सिमिली यूज़ हुई है। फ्लश्ड लाइक बर्ड्स, फ्लश्ड लाइक बर्ड्स, जैसे नए पत्ते अभी पैदा हुए हों। क्लियर लाइक ब्राइडल लाफर, मतलब वो इतनी क्लियर हैं बैंगल्स, इतना सुंदर कलर है उनका, जैसे किसी दुल्हन की मुस्कुराहट होती है, मुस्कान होती है। और कई बहुत सारी जगह पर मेटाफर्स यूज़ हुए हैं। मेटाफर भी एक लिटरेरी डिवाइस है। और एन एक्सप्रेशन, मेटाफर होता क्या है? एन एक्सप्रेशन दैट नॉर्मली डिनोट्स वन थिंग is used for another thing to suggest that two things share a common quality. Some examples, so many examples are there in the poem के अंदर, जैसे rich with the hue of heart's desire, tranquil brow of woodland dream। बहुत जगह पर जो है मेटाफर्स यूज़ हुए हैं। और बहुत बाय यूजिंग सिमिलीज एंड मेटाफर्स सरोजनी नायडू शी हैज़ कंप्लीटेड दिस पोएम वेरी सक्सेसफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली जो है कंपोज किया है इस पोएम को। और वी केम टू नो कि 3 टाइप्स की जो 3 स्टेजेस हैं लाइफ के अंदर, जो वीमेन की लाइफ में आती हैं, उसको थ्रू बैंगल्स किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो इसके बेस पर इस पोएम के बेस पर जो है आपके पास कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिसे आपको प्रिपेयर करना है। जैसे जो कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनके सिनोनिम और एंटोनिम्स जो हैं, जैसे हम हर पोएम के अंदर करते हैं आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में, उसी तरीके से करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देने हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द शाइनिंग लोड्स, कि शाइनिंग लोड्स क्या हैं। हु इज़ द मेडन रेफर्ड टू द पोएम। व्हाट कलर डू यू थिंक वुड अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हार्ट्स डिज़ायर। तो आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, इस पोएम को पढ़ने के बाद जो है इस पोएम के बेसिस पर आपको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो देने होंगे। और दिस वाज द 10th पोएम, ये हमारी 10th पोएम है बुक की, द बैंगल सेलर्स, विच वाज रिटन बाय सरोजनी नायडू। दिस वाज समथिंग अबाउट दिस पोएम। सो आई होप आप इस पोएम को अच्छे से जो है समझ पाए हैं। और नाउ आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द टेक्सचुअल क्वेश्चंस आप समझ पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड इवनिंग।